Hello everyone, welcome back to our channel Food Tech Online. In today's session, we will discussing about some previous year questions that will appear in your GATE Excel or Life Sciences exams related to the microbiology subject. So before starting the video, let me tell you about our app which is named Food Tech Online. Our app is present on Google Play Store, and this app will help you regarding all the food exams like Food Tech, GATE exam, FSSI exam, Food Analyst exam, or any state exam related to the food. Our app has many questions related to your different subjects, like they have microbiology questions, biochemistry questions, food product and technologies, and all these subjects that will appear in your exams are present in our app, so it will helpful for you guys to prepare your exam. So now let's begin with the previous year questions of GATE Excel microbiology. So first question is, according to Pasteur statement, which of the following is true? So हमें यहाँ पे चार statements दिए हैं जिसमें से हमें identify करना है कि true कौन सा है. So first statement है हमारा, living organisms discriminate between stereoisomers. So पहला statement इन्होंने दिया है ये. सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस. बेसिकली फर्मेंटेशन इज नॉट एन एरोबिक, इट इज एन एनएरोबिक process. Then if our B option is incorrect, then we can eliminate option number D as well because it contains both A and B. And our A option is also wrong because living organism not discriminate into stereoisomers. So our third option is correct because it says living organism does not discriminate between the stereoisomers. Our second question is, I found floating there is an earthly particle, some green streaks, spirally wound, serpent-wise and orderly arranged. The whole circumstance of each of these streaks was about the thickness of hair on one's head. These are words of. ये एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है. एक साइंटिस्ट ने कुछ फाइंड किया था, उसके बारे में जब उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो इस तरह का एक स्टेटमेंट हमें बोला. अब हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है किसकी. बेसिकली ये स्टेटमेंट है ल्यूविनॉक की. जब उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे उन्हें इस तरह की कोई कॉलोनी मिली थी जिसके बारे में उन्होंने इस तरह से चीजें कही थी. अदर भी यहाँ पे जो भी आपको तीनों साइंटिस्ट दिए हैं इनका भी माइक्रोबायोलॉजी में एक हिस्टोरिकल रोल है, बट ये स्टेटमेंट इन लोगों ने नहीं दिया. सो third question is the principal light trapping pigment molecule in plant, algae and cyanobacteria. प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट, इसके नाम से ही हम बता देंगे, हम 8th 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि लाइट को कौन ट्रैप करता है. सिंपली क्लोरोफिल ट्रैप करता है, बट क्लोरोफिल भी हमारे पास ए बी सी डी इस तरीके से वेरिएंट्स में आता है. तो ये जो तीनों ऑप्शन हमें दिए ना, ये तीनों ही पिगमेंट है. पोरफायरिन भी एक पिगमेंट है, रोडेप्सिन भी पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी भी. बट ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स है, और जो आपका प्रिंसिपल और मेन पिगमेंट है वो है आपका क्लोरोफिल ए. Next question is, during biogeochemical cycle, some amount of elemental carbon was utilized by the microorganism. The phenomenon is known as. Basically, biogeochemicals, हम उन साइकिल्स की बात कर रहे हैं जो हम नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल ये सब हम पढ़ते हैं कि कैसे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से निकल के फिर उसको हम इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. तो इन्होंने कहा कि जब कुछ अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन को यूटिलाइज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फेनोमेना का नेम क्या है. सो द फेनोमेना इज नोन एन इमोबिलाइजेशन. Then our next question is, who demonstrated that open tubes of growth remained free of bacteria when air was free of dust. So this statement is saying कि अगर हम, ये स्टेटमेंट किसी ने कही थी कि अगर आपने कोई कल्चर या फिर आपका कोई भी मीडियम है जहाँ पे जिसको आपने कंटेमिनेंट फ्री रखा है, तो वहां पे कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आके नहीं ग्रो कर पाएगा. तो ये स्टेटमेंट जो कही थी वो जॉन टिंडल ने कही थी. इन लोगों ने प्लेंजी, फ्रांसिस्को रेड्डी और पास्चर ने भी, अगर आपको याद हो तो, इस पे काम किया था. ये बायोजेनेसिस की थ्योरी को रिजेक्ट करने पे काम किया था और इन्हीं लोगों ने थ्योरी दी थी कि ए बायोजेनेसिस जैसा कुछ नहीं होता. लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन टिंडल ने की थी. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिवर्स आइसोलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर. रिवर्स आइसोलेशन इसमें से हम किसका कर सकते हैं. इसमें कहा कि एक पेशेंट, अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस, अ पेशेंट हु हैड
हैज माइनर सर्जरी, अ पेशेंट विद ग्लूकोमा, अ पेशेंट विद ल्यूकीमिया. तो आउट ऑफ ऑल दीज conditions, we can go with reverse isolation with a patient who has leukemia. Leukemia is a type of cancer that is called blood cancer. Next question is, the symptom general feeling of illness and discomfort is called. Symptom एक तरीके का कि symptom जिसमें हमें illness आए और discomfort आए. डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के हमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिम्टम्स होते हैं. तो इसने कहा कि क्वेश्चन ने कहा कि जिसमें हमें इलनेस जैसा बीमारी जैसा फील हो, डिस्कम्फर्ट फील हो, वो किस में आएगा. इनमें से देखो, अर्थराइटिस हमने सुना होगा सबने, एक ऑटो इम्यून डिसीज है. और एनाफिलेटिक शॉक एक तरीके की एलर्जी टाइप की होती है कि किसी चीज से एलर्जी हो, लेकिन ये इलनेस और डिस्कम्फर्ट मेलिस डिसीज के सिम्टम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिम्बायोटिज्म. यहाँ पे बहुत सारे हमें बैक्टीरियाज के नाम दिए, इनमें से कौन सा सिम्बायोसिस में रहता है सोयाबीन के साथ. तो यहाँ पे रहेगा आपका राइजोबियम. ये अदर भी जो है ये भी सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब फ्री फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे कि नोस्टॉक है, ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी रह सकता है. लेकिन जो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही रहता है. The next question is, who provide the evidence that bacteriophage nucleic acid but protein enters the host cell during infection. एक ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जब कोई बैक्टीरियोफेज, माने हम एक वायरस की बात कर रहे हैं जो किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, कि जब वो किसी होस्ट में एंटर करता है तो सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड ही एंट्री लेगा, प्रोटीन नहीं लेगा. तो ये आपका डिस्कवर किया था हर्शे एंड चेज ने 1952 में अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू. इन्होंने नाम भी दिया था इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. तो ये हर्शे एंड चेज ने किया था. देन आपका स्पाइरुलिना बिलोंग टू. स्पाइरुलिना बेसिकली क्या है, एक एल्गी है, और ये एक ग्रीन एल्गी है. और ग्रीन एल्गी आपकी आती है साइनोफाइसी में, रोडोफाइसी में आती है आपकी रेड एल्गी, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी. द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टेक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर. ये सब जो हमें दिए हैं, हमारी जो आईजीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है सब वो दी है, लेकिन इन्होंने कहा कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन होगी जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेगा. तो फर्स्ट एंटीबॉडी जो सबसे पहले जाके इन्फेक्शन की लोकेशन पे पहुंचती है, दैट इज योर आईजी एम एंटीबॉडी. एक पेंटामेरिक फॉर्म होती है जो कि जे चेन से लिंक्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनिसेंट बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम. जो भी हमारे बायोल्यूमिनिसेंट शो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो किसी सबस्ट्रेट पे वर्क करके वहां से लाइट एमिट कराएगा. तो वो एंजाइम आपका होता है ल्यूसीफरेज. दिस आंसर इज रॉन्ग, योर करेक्ट आंसर इज ल्यूसीफेरेज. ल्यूसीफेरेज एक एंजाइम है जो लाइट एमिट कराएगा. Then our next question is, pick out the vector using in human genome project. Human genome project basically क्यों किया गया था कि हमें sequencing करनी थी, sequence of human genome. इस प्रोजेक्ट का मोटिव था कि हमें पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है. तो इसमें हमने बेसिकली यूज किए थे यैक एंड बैक. ये दोनों इसलिए यूज किए थे क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है होस्ट का डीएनए कंटेन करने की वो बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे हमें बैक का ऑप्शन तो नहीं दिया, बट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का हमें ऑप्शन दिया है, तो हम उसी को पिक करेंगे. नेक्स्ट है आपका, शुगर एंड सॉल्ट प्रिजर्व फूड बिकॉज दे. वाई शुगर एंड सॉल्ट प्रिजर्व द फूड. अगर आप देखें तो हम जो घर में अचार डालते हैं या बहुत सारी घर में चीजें बनाते हैं तो हम उनमें कभी शुगर ऐड कर देते हैं, कभी ऑयल ऐड कर देते हैं, बिकॉज दे आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. वो क्या करते हैं, वो आपका जो इन्वायरमेंट है उसको हाइपरटोनिक बना देंगे. हाइपरटोनिक का मतलब है कि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे क्या होगा, वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे वाटर का कंटेंट कम होगा. और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से कोई भी माइक्रोब का ग्रोथ वहां पे रिड्यूस हो जाएगा या फिर रुक जाएगा. इसलिए हम वहां पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कर देते हैं इन दोनों चीजों का यूज करके. ये दोनों बेसिकली है क्या, सोल्यूट ही तो है, तो आप इनको ऐड करके सोल्यूशन को क्या बना देते हैं, हाइपरटोनिक. सो दैट्स हाउ वी प्रिजर्व द फूड. Next is, in fluorescent microscope, the objective lens is made up of. Basically, fluorescent microscope is a type of your light microscope.
और यहाँ पे जिस टाइप का हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं वो है आपका क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय मींस ऑफ। जो N2 है उसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते N2 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इनके बीच में। तो हमें इसे अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वो नाइट्राइट नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो अमो नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, अमोनिफिकेशन हो रही है, फिक्सेशन हो रही है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो सकती है, कुछ नेचुरल चीजें लाइक लाइटनिंग, इन सब चीजों से। तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन दिए हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज को पिक करेंगे। Which one of the following fungi is the most serious threat in bone marrow transplant unit? If you are doing a bone marrow transplant, तो एक इस तरह की फंजाई है जो बहुत ज्यादा उस टाइम पे सीरियस थ्रेट कॉज कर सकती है, किसी तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस, एस्परगिलस इज द फंजाई that will be a threat during bone marrow transplant. Next question is direct microscopic count can be done with the aid of। ये हमें अलग अलग मेथड्स दिए हैं जिनको हम यूज करके कोई भी माइक्रोस्कोपिक कोई सेल हो या कोई आपका माइक्रोब हो उसको काउंट कर ले। तो ये होता है आपका न्यूबर्ग चैम्बर, ये साइंटिस्ट का नाम है, और इस चैम्बर को इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया था कि आप माइक्रोस्कोपिक को डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरीके की इमेज हमें मिलती है? तो उसमें हमें वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज मिलती है, तो हम वर्चुअल को पिक करेंगे। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कब होता है आपका? एनएरोबिक कंडीशन में, जहां पे आपको डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इस तरह के एंजाइम्स आते हैं और बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स भी होता है। तो यहाँ पे आपका जाइमेज एंजाइम होता है जो इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कराता है। विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली? बेसिकली यहाँ पे फंजाई के स्पोर्स हमें दिए हैं, और फंजाई ना तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअली भी, सेक्सुअली भी। तो इसके पास स्पोर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल भी हो सकता है। इसकी डिफरेंट क्लासेस भी हैं, जिसमें से हमें ड्यूटेरोमाइसिटीज, इफ यू रिमेम्बर, उसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो इनमें जो भी देखो, कोनेडिया जो है वो एक एसेक्सुअल स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर भी एसेक्सुअल स्पोर है, बट जो आपका स्कोस्पोर है वो सेक्सुअल स्पोर। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक आपका एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने चेक किया था कि कैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई और जेनेटिक मटेरियल चला जाता है अपने इन्वायरमेंट से। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोलते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको साइंटिस्ट दिया ना, सबका माइक्रोबायोलॉजी में रोल है। लुई पास्चर को भी बोलता है फादर, लेकिन इनको मॉडर्न, ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला, ना कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो हम एवी ल्यूवेनहुक की बात करेंगे। लिस्टर ने भी आपका सर्जरी में बहुत रोल परफॉर्म किया था, और रॉबर्ट कोच ने आपका जर्म थ्योरी में, कोच पोस्टुलेट, ये सब में इनका रोल था। अब आया द एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो ये किया था लॉर्ड लिस्टर ने, इसको इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, यही सबसे पहली वैक्सीन थी जो बनाई गई थी, और ये बनाई थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। काउ पॉक्स वाली जो स्टोरी है कि उन्होंने एक स्मॉल बॉय जो काउ काउस के आसपास वॉक करता था उसको इन्होंने इन्फेक्ट कराया था स्मॉल पॉक्स से, बट क्योंकि वो पहले ही काउ पॉक्स से अपने आप को वो कर चुका था, इम्यून कर चुका था, तो वो इन्फेक्ट नहीं हुआ था। इस तरीके से उन्होंने इस पूरी को बनाया था। At last, I'm again requesting you all to once check out our app. This will help you a lot with practicing the questions for your any exam that is related to the food technology. That's it for this session. Thank you for watching.